Assalamualaikum everyone. आज हम डिस्कस करेंगे बेसिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एंटरप्राइज स्ट्रक्चर. So, Mr. Hedruddin, please start it. Okay. Okay, participants, Assalamu alaikum. In the previous lecture, we configured the divisions falling under logistics general. Today, we will start with material management. So first we will type STRO, then SAP reference IMG, enterprise structure, definition, and then we will go to material management. So here under material management, you can see we have to configure two things. First, maintain storage location, and the second one is maintain purchasing organization. So first we will maintain the storage location. जैसा कि हमने देखा कि हमने कुछ प्लांट सेट किए हैं, तो प्लांट्स के लिए ऑब्वियसली हम वहाँ प्रोडक्शन कर रहे हैं, प्रोडक्शन के लिए मटेरियल रिक्वायर्ड है, तो भी उस मटेरियल को हमें कहीं ना कहीं स्टोर भी करना है. तो वो जहां हम उसको स्टोर कर रहे हैं उस लोकेशन को मेंटेन करना है. बेसिकली दैट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटेनिंग स्टोरेज लोकेशन. तो फर्स्ट वी विल क्लिक ऑन दिस क्लॉक, वी विल एग्जीक्यूट. सो हियर यू कैन सी फील्ड नेम प्लांट. सो जो हमने प्लांट क्रिएट किया है हम उसका नेम यहाँ मेंशन करेंगे. और here we find a screen. आप देख सकते हैं plant name is mentioned over here. So then we will click on new entries. We'll assign a code. For every location we assign a unique code. And then in the second column you can see description of a storage location. हम उस storage location पे जो चीज थोड़ी स्पीड ज्यादा है. In the column, we will first assign the code. For example, this is our first location. We mention SL01. And in the description, we will mention what we are storing over there. This is how we name it generally. So we are, for example, storing bottles. Okay. Then second one, SL02. We are storing water. Then, for example, the third one is SL storage location 03. We are maintaining fruits. That's for example. So I have configured 3 storage locations with the description here: bottles, water, and fruits. Then we will save it. We will click here and save. Click on it. So you can see data was saved. Now we also need to assign address to each storage location one by one. So first of all, we will select our storage location 1 where we are storing bottles. Then we click on addresses. Okay, that's the second tab. Here you see new entries again. So we will click on new entries. We will mention 01. That's the location 1. And we will click on enter. Here you can see the address, edit address. So we will give the address to that storage location. First, from the drop down, we will select company. Then we will mention the name of our company. The details, the rest are the details. We all know about it. We'll only select AE here just to save the time, and we'll save it. See, you can see this one is saved. Okay. Then we will go back. Second one, storage location 2. We will assign address to it. And what is the procedure of assigning address to it? We will double click on address of storage location. Here we will click on new entries. So that's the second location. Click enter. Then again the same practice, we will mention the name of the company, all the details with the region. And we'll save it. Data was saved. Same like this, whatever number of storage locations or material we configured, we have to assign the addresses to each one by one. Okay. So we allocated address to 2. You can also allocate to the third one, right? Then we will maintain purchase organization.
if we are maintaining a plant, we are maintaining inventory for it, we are maintaining storage location, then we must have an organization in every company who is responsible for buying these materials, right? So that's the concept of maintaining purchase organization, that there is an organization who is responsible for buying all these materials. So we execute this one. Here you can see new entries, click on it, then we will assign a code to the purchase organization. For example, PO, this reflects purchase organization. DX, that's our company code. So here we will mention purchase organization and DX01, right? Then we will save it. Any questions regarding this material management? Voice Participants? No, all clear. very good. All एक clear? और चीज ये कि Okay, I also want to explain here. हम जब भी कोई विंडो ओपन करें, अगर हमारे पास न्यू एंट्रीज और पोजीशन हो, ये एक फॉर्मूला है, तो वहां की चीज कॉन्फ़िगर करने के लिए हमें न्यू एंट्रीज के जाना पड़ेगा. अगर न्यू एंट्री अवेलेबल नहीं है ऑप्शन, देन वी विल गो विद पोजीशन. You people will experience this later on. I just explained it here. come to plant maintenance. Yes, sir. Come to plant maintenance. Sorry? Plant maintenance. Come to plant maintenance. Plant maintenance. Okay. We will execute this one. Yeah. Okay, PLX1. That's our plant. Okay, and we will save this one. So we also configured the plant maintenance. Very good. Okay, now we have defined three things in enterprise structure. First one is financial accounting. Second one is logistics, general, in which we configure plant, its location and divisions. The third one is material management, where we configure purchase organization, and the other one Store location. organization. अच्छा, यहाँ पे और भी जैसे कि कंट्रोलिंग है, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, लॉजिस्टिक्स है. वी विल कॉन्फ़िगर दिस लेटर ऑन. उसकी रीजन ये है कि और भी ये डिपेंडेंट है कुछ दूसरी चीजों के ऊपर, लाइक कंट्रोलिंग या सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये डिपेंडेंट है कुछ चीजों के ऊपर जिनको हम कॉन्फ़िगर करेंगे, फिर हम इनको वापस आकर सेट करेंगे. ओके, अब हमने एंटरप्राइज स्ट्रक्चर डिफाइन किया. अच्छा, आप सबने एक चीज ऑब्जर्व की होगी, हमने अपनी कंपनी को एक कोड दे दिया, प्लांट को एक कोड दे दिया, उसका एड्रेस दे दिया, मटेरियल परचेज ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन कर ली, स्टोरेज लोकेशन मेंटेन कर ली. बट हाउ वी विल आइडेंटिफाई कि दिस इज लिंक्ड टू आवर कंपनी? हमने कहीं पे भी इसको ये आइडेंटिफाई नहीं किया कि दिस इज लिंक्ड टू DX01. वो हमने कहीं पे भी मेंशन नहीं किया. तो उसको हमें लिंक करना है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को हमने जितना डिफाइन किया उस सबको हमने लिंक करना है अपनी कंपनी के साथ. सो यू कैन सी असाइनमेंट हियर अंडर एंटरप्राइज स्ट्रक्चर. यू कैन सी अ सेकंड स्टेप, असाइनमेंट. तो असाइनमेंट में आप देखें, सेम जैसे डेफिनेशन के अंदर हमारे पास जितनी चीजें अवेलेबल थी, जितनी चीजें हमने कॉन्फ़िगर करनी थी, सेम लाइक वी हैव ऑल दीज थिंग्स अंडर असाइनमेंट. ये इसलिए है कि जो कुछ हमने डिफाइन किया उसको अपनी कंपनी से करें. अपनी कंपनी से कोई भी चीज लिंक करने में मिस कर जाते हैं तो लेटर ऑन वी विल नॉट बी एबल टू पोस्ट एन एंट्री. अंडर फाइनेंशियल अकाउंटिंग, सी यू कैन, द फर्स्ट थिंग यू सी हियर, असाइन कंपनी कोड टू कंपनी. ओके, so we will execute this one. Then see here, you can see there is no option of new entries, we only have an option of position. So we will click on position, give our company code as asked here, company code DX01, enter. You can see here, so we will give the code here DX01. Okay, you can see here. Then we'll click on save. This is how we assign company code to our company. The second step, हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्रेडिट कंट्रोल एरिया डिफाइन किया था, लेकिन हमने कहीं भी उसको अपनी कंपनी से लिंक नहीं किया था. सो दिस इज द स्टेप वेयर वी असाइन आवर क्रेडिट कंट्रोल एरिया टू आवर कंपनी.
We execute on this one. We click on position. We will give the company code DX01. You can see it is asked here company code. Click on tick. Now here we will mention CCAX. ये देखें, credit control area DX01. All of you can see this one. We will select and save. Now credit control area is assigned to our company. Okay, third step, assign business area to consolidated business area. वो भी हमने नहीं किया, later on जब हम consolidated business area की तरफ जाएंगे फिर हम इसको discuss करेंगे. अच्छा, हमने financial area maintain किया था enterprise structure में. So we will assign company code to financial management area. We will execute this entry. Then we will click on position. Again, you can see it asks us our company code DX01. Here we mention the financial management code. Here, okay. We will select this one. Then we will save it. Okay. You can see here in this line, in this row, our financial management area is assigned to company code. On the top, you can see this information company code, and this is financial management area. So we assign this financial management area to our company code. Financial accounting में हुआ, then we did the enterprise structure configuration in logistics. So here you can see assign plant to company code. As I explained earlier, हमने enterprise structure में सिर्फ plant define किया था, उसकी location define की थी. We have not linked it to our company. So here we will link to our company. Assign. We will execute the entry. Okay. Now you all can see we have two options: position and new entries. मैं आपको पहले ही explain कर चुका हूं कि whenever we have an option of new entries on position, we always go with new entries. Click on new entries. Okay, now you can see two columns. This one is company code. This one is plant. We will first mention our company code here. DX01, Dubai Beverages, and plant. We will mention the code of plant, PLX1. Okay. So these two information we need to enter here and then click on save. अच्छा, we were talking about that we'll create 8 plants. तो मैं later on ना वो बाकी remaining plants को create कर दूंगा और इनको link भी कर दूंगा, लेकिन just for the understanding, this is how we'll do it. I'll just show you here. Click on position, mention plant code. You can see here. This is our company code. This is our plant. हमने जिस वक्त प्लांट कोड और कंपनी कोड को लिंक किया तो नेम ऑफ प्लांट मेंशन नहीं हो रहा था. आपको याद होगा वो ब्लू कॉलम था. सेम कंपनी के नेम कॉलम वाज आल्सो ब्लू. सो हमने जब उनको लिंक किया तो सिस्टम ने ऑटोमेटिकली नेम ऑफ प्लांट और कंपनी नेम को फेच किया है जो हमने लिंक किया है इससे. ओके, लॉजिस्टिक्स में ये दो हम करेंगे, सॉरी असाइन करेंगे प्लांट को. देन वी विल लिंक मटेरियल मैनेजमेंट. अच्छा, हमने एक परचेज ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट की थी हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द परचेजेस ऑफ मटेरियल. तो उसको अब अपनी कंपनी कोड से हमने असाइन करना है. फर्स्ट वी विल एग्जीक्यूट द एंट्री. सी देयर इज नो ऑप्शन ऑफ न्यू एंट्रीज हियर, सो वी विल क्लिक ऑन पोजीशन. So now it asks us to mention the purchase organization code PODX. That was our code. Okay. Now you can see purchase organization name is mentioned, code is mentioned, company name यहाँ पे mention नहीं है. Later on हम इसको check करेंगे कि company name भी यहाँ पे आ गया है. तो first we will assign company code here DX01. That was our company code, Dubai Beverages. We will save it. So here you can see हमने सिर्फ कंपनी कोड मेंशन लिया था इस यहाँ पे, उसने कंपनी का नेम पिक किया है क्योंकि ये सक्सेसफुली असाइन हो गया. दिस इज आल्सो अ साइन ऑफ असाइनिंग थिंग्स सक्सेसफुली. अगर यहाँ पे कंपनी का नेम मेंशन ना हो या रॉन्ग हो जाए तो इट मींस वी असाइन द रॉन्ग कोड टू आवर परचेज ऑर्गेनाइजेशन. दैट्स आल्सो अ थिंग टू वेरीफाई.
अच्छा, उसके बाद है असाइन परचेज ऑर्गेनाइजेशन टू प्लांट। अच्छा, हम प्लांट के साथ और परचेज ऑर्गेनाइजेशन क्यों असाइन कर रहे हैं? ऑब्वियसली हम जो चीजें बाय कर रहे हैं वो प्लांट के लिए कर रहे हैं ना। अच्छा, हमारे पास 8 डिफरेंट प्लांट्स हैं, उनकी बाइंग के रिस्पॉन्सिबल परचेज ऑर्गेनाइजेशन एक है या हमने डिफरेंट परचेज ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई हैं, तो वो उनकी रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, वो उस हिसाब से हम असाइन करेंगे। तो वी विल एग्जीक्यूट द एंट्री, वी विल क्लिक ऑन न्यू एंट्रीज। Here you can see purchase organization, PODX. Here you can see the plant. The description is blue, means the system will automatically fetch the details. Here the name of the plant is blue, system will automatically fetch it. तो हमारा plant का जो कोड है PLX1. We'll save this one. So now you can see purchase organization. The description is automatically fetched from the system. Same like here in this column, the name of the plant is also automatically fetched. Okay. Company code of plant. यहाँ पे I want to show you something more later on, शायद हम उसको देख सकें कि कुछ plants जो हैं वो assign नहीं। Okay, यहाँ पे आप लोग देखें, plant is not available here. That's because कि उन्होंने plant को अभी assign ही नहीं किया इसके साथ. That's why it is saying plant is not available here. Same like in this company, same here, same here. They haven't assigned plant to the purchase organization. Okay, ये हम, this is the assignment step. आज please जी open assignment and come to plant maintenance. material Plant maintenance. Plant? Plant maintenance. Thank you. oh sorry sir, 1 second sir. अच्छा अब्दुल्ला, Okay, आपको assign अब्दुल्ला तनवीर, अभी आपको समझ आ रही है कि ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इसमें आपने प्लांट को असाइन करना है ना, तो प्लांट को असाइन करने के लिए आपको बेसिक पैरामीटर्स की कॉन्फ़िगरेशन करना लाजमी है, मैंडेटरी है। ओके अब्दुल्ला तनवीर? जी सर, एग्जैक्टली। ओके प्लीज मिस्टर हैदुद्दीन कंटिन्यू। थैंक यू सो मच। PLX1 PLX1 planning PX1 PLX1 X1. Okay, we'll click on save. No sir. Okay, no controlling area is allocated to company code. सर उसके लिए हमें controlling area पहले establish करना पड़ेगा। एक मिनट यहाँ रखें, एक मिनट। अच्छा अब्दुल्ला, मुझे एक बात बताएं। देखिए ये आपका डिपार्टमेंट है ना, नाम क्या आपका? मिस्टर अब्दुल्ला तनवीर, आर यू हियर? जी सर। यू हैव टू असाइन योर प्लांट टू प्लांट मेंटेनेंस, लेकिन सिस्टम ये आपसे कहे कि भाई फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू एलोकेट कंट्रोलिंग एरिया टू योर कंपनी कोड। मीन टू से कि प्लांट मेंटेनेंस में कंट्रोलिंग एरिया का क्या काम है जनाब? ये आप थोड़ा सा लॉजिक समझा रही है। बात का ऐसा होता है कि अब फॉर एग्जांपल के जो पीएम के कंसल्टेंट्स होते हैं या पीपी के कंसल्टेंट हैं या एमएम के कंसल्टेंट्स, अक्सर मुझे कहते हैं सर जी आप हमें वो चीज़ें सिखा रहे हैं जो हमारे मतलब कि उसमें रेंज में नहीं आती ना। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप हैं, अब मुझे ये बताएं कि सिस्टम खुद आपसे कह रहा है कि भाई प्लांट मेंटेनेंस में आप तभी काम कर सकते हैं जब आपका कंट्रोलिंग एरिया डिफाइन होगा। ये आपके सामने एविडेंस आ गया अब्दुल्ला तनवीर? बिल्कुल सर। अच्छा, अब इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने प्लांट की असाइनमेंट तब कर पाएंगे जब आप पहले कंट्रोलिंग एरिया को डिफाइन करेंगे। अब कंट्रोलिंग एरिया को डिफाइन करने के लिए हमें क्या चाहिए? फिस्कल ईयर चाहिए, हमें क्या चाहिए? पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट चाहिए, हमें क्या चाहिए? फील्ड स्टेटस वेरिएंट चाहिए, हमें क्या चाहिए? चार्ट ऑफ अकाउंट चाहिए। ये 4 चीजें होंगी तो आपका कंट्रोलिंग एरिया बनेगा। जब आपका कंट्रोलिंग एरिया बनेगा तो आप फिर इसके ऊपर काम कर सकेंगे। अंडरस्टूड? जी सर, गॉट इट। इसी वजह से हमने आपको इनके साथ एडजस्ट कर दिया ताकि आपको बेसिक जो कॉन्फ़िगरेशन से पीएम के वो भी साथ साथ क्लियर होती जाए। ओके जी सर। ओके सर। मिस्टर हैदुद्दीन प्लीज कंटिन्यू, यू आर डूइंग वेरी वेल। ओके सर, एक्सीलेंट।
Now come to ओके, purchase इसके बाद fixed हम आएंगे नेक्स्ट एरिया फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। अच्छा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम लोग देन वी विल कम ऑन फाइनेंशियल अकाउंट। परचेज ऑर्गेनाइजेशन से आपका मतलब है परचेज डिपार्टमेंट, राइट? जी जी। ओके। दूसरा हमने लिंक किया इसको परचेज डिपार्टमेंट या ऑर्गेनाइजेशन को प्लांट के साथ। आपने कहा कि हम बेसिकली कुछ भी परचेज करेंगे तो प्लांट के लिए करेंगे। इसको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे कोई एग्जांपल अच्छा, देके? बहुत अच्छा सवाल आपने किया, बहुत ही ब्रिलियंट माशाल्लाह से किया। अच्छा, मैंने जैसे कि आपसे कहा था कि लास्ट टाइम भी ना कि आपके पास में कोई पानी की एक बॉटल होनी चाहिए या जूस की एक बॉटल हो। अगर अभी आपके पास है तो वो ज़्यादा अच्छा, हम उसको प्रैक्टिकली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। प्लीज़ एनी वन ऑफ यू हैव सम बॉटल? गर्मी का जी मौसम सर, हो मेरे है। पास है। वेरी गुड। मेरे जी पास सर, है है सर। मेरे पास। ओह क्या बात है, वेरी नीट। अब ये देखिए, मुझे आप एक चीज बताएं, जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में आपसे कहा था कि भैया आपके पास 8 डिपार्टमेंट से, एक डिपार्टमेंट का काम क्या है बॉइलिंग करना, दूसरे का काम क्या है मिक्सिंग करना, तीसरे का काम क्या है फिल्ट्रेशन करना, चौथे का काम क्या है फिलिंग करना। अब मुझे ये बताएं, आपके पास जो पानी की बॉटल है, अब इस पानी की बॉटल में ना 3 चीजें हैं। एक आपका वाटर है, मिनरल वाटर, एक आपका प्लास्टिक बॉटल है, एक आपकी पैकेजिंग मटेरियल है। आई एम राइट यस बॉयज? सर। आई एम राइट? अच्छा, यस अब मुझे जी अब यस। मुझे ये बताएं कि एक प्लांट का काम है मिक्सिंग करना। मिक्सिंग किस चीज की करेगा? इंग्रेडिएंट्स की। आप देखें ना बॉटल के पीछे वो रैपर में लिखा होगा मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटाशियम, फला सो ऑन लिखा हुआ है। जी सर, बिल्कुल। और भाई मिक्सिंग प्लांट, अच्छा ये जितने भी इंग्रेडिएंट्स है ना, ये हमने कहाँ पे देना है? परचेज डिपार्टमेंट ने इनको परचेज करके तो किस डिपार्टमेंट को असाइन करेगा? मिक्सिंग डिपार्टमेंट को। क्लियर? अब अच्छा, मिक्सिंग प्लांट को आपने ये दे दिया तो मिक्स ने क्या किया, उन तमाम इंग्रेडिएंट्स को मिक्सअप करके नेक्स्ट डिपार्टमेंट को उसने फॉरवर्ड कर दिया वाटर को, जिसमें क्या होगा फिल्ट्रेशन होगी। फिल्ट्रेशन के बाद क्या होगा? फिलिंग होगी। फिलिंग डिपार्टमेंट ने पानी की फिलिंग कहाँ करेगा? वो जैसी बात है बॉटल में करेगा। ऐसे ही बॉयज? जी सर। जी। बताएं, सब बताएं, यस नो यस नो, ऐसे ही है ना? हाँ एग्जैक्टली जी, सर, ऐसे ऐसा ही ही है। है। अब ये देखें कि जो फिलिंग प्लांट है उसके लिए रॉ मटेरियल हमने क्या प्रोवाइड करना है? बॉटल। मिक्सिंग प्लांट को हमने क्या प्रोवाइड करना है? इंग्रेडिएंट्स। और जो बॉइलिंग प्लांट है मतलब उस प्लांट में किसको बॉयल किया जाएगा? वाटर को बॉयल किया जाएगा, पानी को बॉयल किया जाएगा। अंडरस्टूड? सो परचेज डिपार्टमेंट ये देखते हैं कि भाई हमारे पास जो परचेज रिक्विजिशन आ रही है वो किस डिपार्टमेंट से आ रही है। और इसकी और लॉजिक ये है कि मैंने जो आपको यहाँ पे सिस्टम का मैंने डे 1 बताया था ना, उस सिस्टम में क्या होता है कि हर डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट के साथ इंटरलिंक होता है। बेसिक फंक्शन ये है कि कंपनी के अंदर जो भी ट्रांजैक्शन हो रही हो, तमाम डिपार्टमेंट्स को मालूम हो कि भाई हम ये ट्रांजैक्शन क्यों कर रहे हैं, राइट? और इसकी एक और एग्जांपल ऐसे कि जैसे कि कस्टमर अप्रोच करते हैं कंपनी को, कंपनी से कहते हैं मुझे आपने 7 लाख बॉटल जो है पानी के जूसेस की वो आपने प्रोवाइड करनी है। तो 7 लाख बॉटल जो है जिसमें ये है, तो दिन प्लीज जो मैंने आपको एक डेटा शेयर किया था वो आपने नेक्स्ट क्लास में इनको प्रेजेंट करना है ताकि लॉजिक और कॉन्सेप्ट मजीद क्लियर हो जाए। भाई हम क्या करें, हमने एक ठीक है। प्रोजेक्ट को हमने एग्जीक्यूट करने, तो वो जब आपके पास एक थीम होगा ना, एक रोड मैप होगा, तो आपके लिए बहुत इजी टू अंडरस्टैंड हो जाएगा इंशाल्लाह। तो एक तो डिपार्टमेंट्स के इंटरलिंक, सेकंड इफेक्टिवनेस ऑफ ट्रांजैक्शंस ऑफ ऑल डिपार्टमेंट्स, थर्ड वन इज जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है वो उन तमाम डिपार्टमेंट्स की जो ट्रांजैक्शन है उसकी इफेक्टिव सुपरविजन कर पाएगा। अंडरस्टूड? जी जी सर, बिल्कुल। और चलें आगे चलें प्लीज। आगे चलें सर। ओके, अब हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग कॉन्फ़िगर करेंगे this thing. So first, under financial accounting, we will go with financial accounting global settings. ये आपने ज्यादा ओपन कर दिया। हाँ, वन जी सर, मैं सर ठीक कर रहा हूँ। वो फिर सिस्टम वो बंद हो जाता है ना, इसलिए मैंने उसको एक्टिव रखा। ओके, ग्लोबल सेटिंग्स के बाद हम लोग आएंगे लेजर्स। अंडर लेजर्स वी विल कम
फिजिकल ईयर। फिस्कल ईयर पोस्टिंग पीरियड। अच्छा, फिस्कल ईयर बेसिकली आप सबने देखा होगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, रिसेंटली मैं ये एक्सपीरियंस किया था अपने सॉफ्टवेयर में। हम लोगों ने फिस्कल ईयर डिफाइन किया हुआ था 2024। When 2025 started, whenever I post an entry, it gives me a pop-up. You are making an entry outside the fiscal year. तो वो रीजन है कि हमें अपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए फिस्कल ईयर डिफाइन करना होगा ताकि हम उसमें पोस्ट कर सके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल क्लिक ऑन मेंटेन फिस्कल ईयर वेरिएंट। वी विल एग्जीक्यूट दिस वन। System is slow, I think. There. Okay. So you can see a window. It says change view fiscal year variants overview. So we have two options: new entries and position again. So we'll click on new entries. So first you can see fiscal year variant. हमें यहाँ पे अपना fiscal year code देना है. So for example, we'll FX. We'll say Jan to December and for special periods. आप एक काम Okay. इसमें फॉर एसपी साथ में DX01 लिख दें, क्योंकि मैं लास्ट टाइम में कंफ्यूज Okay, sir. था। थैंक यू। Okay, no problem, sir. वहाँ पे क्या error है? 4SP DX. जी सर, मेरा ही एरर था। ओके, अब हमारे पास 12 पीरियड्स होते हैं। हियर यू कैन सी नंबर ऑफ पोस्टिंग पीरियड्स। तो पोस्टिंग पीरियड्स में हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मेंशन 12 इन द पोस्टिंग पीरियड एंड नंबर ऑफ स्पेशल पोस्टिंग पीरियड्स वी विल मेंशन 4। ईयर क्लोज करने के बाद एक इंटरनेशनल प्रैक्टिस है कि 4 मंथ्स होते हैं। जाहिद कैन एलेबोरेट दिस वन वेरी वेल, क्योंकि इनका ऑडिट का एक्सपीरियंस हम सबसे, मेरे ख्याल है सबसे ज्यादा है। तो 4 पीरियड्स जो होते हैं जिनके अंदर हमें एंट्रीज वगैरह या जो भी अपनी एडजस्टमेंट करके उसको क्लोज करना होता है। तो दैट्स व्हाई वी मेंटेन 4 स्पेशल पीरियड्स हियर एंड देन वी विल सेव दिस वन। ओके, इसमें एक और चीज़ है बॉयस के, आपके पास जो फिजिकल ईयर के 2 मेथड होते हैं, या तो आप अपना ईयर डिपेंडेंट के ऊपर इसको डिफाइन कर सकते हो या करंट ईयर के ऊपर डिफाइन कर सकते हैं। ओके, जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था कि पाकिस्तान में बहुत सी इंडस्ट्रीज हैं जो अपना एक कस्टमाइज फिजिकल ईयर को मेंटेन कर रही होती हैं। अब्दुल्ला, आपका पॉइंट वही क्लियर? जी सर, clear। इमरान, स्पीड ओके है? अब तो नहीं ज्यादा? Okay, sir. So we maintain fiscal year. Then the second one is assign company code to a fiscal year variant. जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि चीज डिफाइन करना doesn't mean that it is auto linked with our company. We have to assign that particular thing to our company code. So we will execute this one. We will click on position. We will mention the company code as required, DX01. And here we will mention our fiscal year variant FX. Right? हम लोगों ने यही create किया था. We will choose this one. We will save. सेव से पहले आप एंटर भी कर सकते हैं, एंटर से जो है डेटा वो शो हो जाए। Yes. वेरी गुड। Project. Okay. Then we'll go back. The next topic is posting periods. Posting periods में हमें first of all we have to define variants for open posting period and then closing posting period. अच्छा, इस चीज में हम सब ये चीज अपने फाइनेंस एक्सपीरियंस कर चुके होंगे कि पीरियड के बाहर हमें हमारा सिस्टम अगर कोई डिफाइन हुआ हुआ है तो द सिस्टम डजंट अलाउ अस टू पोस्ट एनी एंट्री, और एटलीस्ट इट गिव्स अस अ पॉपअप दैट यू आर पोस्टिंग आउटसाइड द असाइन्ड पीरियड. Is it okay? We click on save or we click on okay, then it allows. Otherwise, most of the system doesn't allow. So first of all, we'll define variant for open posting periods. We click here, we click on new entries, then we are creating or we are defining posting period variant. So PPV stands for posting period variant X. That's our company's code. So we will mention posting period variant DX01. Then we'll click on
save. Mr. Here you can Sherry, see can you that explain what is posting period, please? Mr. Sherry, posting period क्या होता है? जी सर, Posting period क्या होता है? Posting period. नहीं सर, पोस्टिंग पीरियड का मुझे आइडिया नहीं। पोस्टिंग पीरियड बेसिकली होता है कि नंबर ऑफ मंथ्स जो आपके जिसमें आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है उसको प्रिपेयर करना होता है। आमतौर पे आपने ये भी देखोगे कि जो ये कुछ यूरोपियन कंट्रीज हैं, कुछ यूके में भी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो अपनी वीकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मेंटेन कर रही होती हैं। आपने सुना कि भाई वीकली सैलरी उनकी आ गई, तो या तो कंपनी जो है वीकली अपना पोस्टिंग पीरियड को मेंटेन करती है या मंथली पोस्टिंग पीरियड को मेंटेन करती है, या अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मंथली मेंटेन करती है या वीकली मेंटेन करती है। अंडरस्टूड? ओके, या सर जैसे हम सेम जैसे अपना पीरियड क्लोज करते हैं मंथ एंड पे। या एग्जैक्टली सेम लाइक दैट। वेरी गुड, प्लीज ओके कंटिन्यू। okay. The next one again we will assign variant to our company code. Same we assign company code to our fiscal year variant. So we will execute this entry. We will click on position. We will give the company code as required DX01. So here P posting period variant X. This is our posting period variant assigned here. Then we will click on save. Here you can say it is successfully assigned. Okay, next one is open and close posting period. Now we will mention the months or the year for opening and closing posting period. So first we will execute the entry. Okay, now you can see the system doesn't require us to mention the company code. It is asking us to mention the posting period variant we recently created. So posting period variant X. This is what we created. Enter. Okay, so this is the performer here now. Our posting period variant is this one. We will click on new entries. Acha, the first column is account type. If we open the window, we can see different. So the first one is valid for all account types, assets, customers, vendors, materials, real accounts, contracts. For example, हम vendor की एक example ले लेते हैं। हमारा seasonal business है, लाइक हम शुगर का कर रहे हैं या कपास का बिजनेस है, तो हम यहाँ पे वो वेंडर को सिलेक्ट करने के बाद अकाउंट टाइप्स देंगे और पीरियड असाइन कर देंगे। उस पीरियड के बाहर द सिस्टम विल नेवर अलाउ टू पोस्ट एनी एंट्री। एक दिस इज द एडवांटेज और द की एस्पेक्ट ऑफ क्रिएटिंग और असाइनिंग दिस अकाउंट टाइप ऑप्शन है। सेम लाइक कस्टमर्स और एसेट्स, हमारे पास ये फैसिलिटी है जीएल अकाउंट्स। लेकिन अभी जस्ट टू कीप द ट्रेनिंग सिंपल हम सिलेक्ट कर लेते हैं वैलिड फॉर ऑल अकाउंट टाइप्स। अगर ये हम एसेट या कुछ वेंडर सेलेक्ट करेंगे तो सिर्फ उस वेंडर्स के लिए हम आउट ऑफ पीरियड एंट्री नहीं कर सकेंगे, राइट? जी उसमें लेकिन उसमें हमें ये होगा कि उन वेंडर्स के अकाउंट नंबर मेंशन करने होंगे। ओके, फॉर एग्जांपल हम असाइन कर रहे हैं कि हमारे अकाउंट 111 और 1112 जो है, इन अकाउंट्स को हम सिर्फ पीरियड असाइन करना चाह रहे हैं, तो वी विल मेंशन फ्रॉम अकाउंट टू अकाउंट, तो द सिस्टम विल ओनली पिक दोज वन, उसके अलावा नहीं करेगा। ओके, वेंडर अकाउंट बाय अकाउंट मेंशन फॉर एग्जांपल इफ वी आर टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ वेंडर्स, वी हैव टू मेंशन द अकाउंट नंबर्स एज वेल। सो राइट नाउ आई विल लीव दीज टू कॉलम्स बिकॉज हमने इसमें मेरे विंडो से सिर्फ वैलिड फॉर ऑल अकाउंट टाइप्स ले लिया, तो वी विल लीव दिस वन फॉर नाउ। सो द फर्स्ट फ्रॉम पीरियड वन। अच्छा, हम लोगों का पीरियड वन नॉर्मली हम लोगों ने जो असाइन किया है फिस्कल ईयर, वो जैन टू दिसंबर है बेसिकली। सो तो हमारा फर्स्ट पोस्टिंग पीरियड होगा वो जनवरी होगा, राइट? जैन। आवर करंट ईयर इज 2025। ओके, टू पीरियड वन, सो 12th मंथ, 12वां महीना, दैट्स द पोस्टिंग पीरियड। वी मेंशन 12 2025। अच्छा, आपको याद होगा जस्ट 5 मिनट्स हमने पहले ये बात की थी कि 4 स्पेशल पीरियड्स होते हैं, 4 मजीद महीने हमारे पास अवेलेबल होते हैं जिनमें हम अपनी एडजस्टमेंट या एंट्रीज वगैरह देख रहे होते हैं। तो वी विल मेंशन 16 एंड दैट विल बी 2026। ओके, राइट? ओके,
Is that correct, sir? Yes, excellent, good. Okay, we'll save this one. Okay. So we'll go back. ओके अब आगे है हमारे पास ओपन एंड क्लोज पोस्टिंग पीरियड्स अकॉर्डिंग टू जीएल अकाउंट असाइनमेंट ऑब्जेक्ट्स we'll see what do we have. I think skip this option please. इसकी जरूरत नहीं है अभी. Yes, we can. Okay. Come to Okay, काफी है. So you people want to study more? आज के लिए इतना काफी है. आज के लिए सर वो जॉब पे भी जाते हैं ना. नहीं प्रैक्टिस करनी है तो इतना तो होना टाइम कि चाहिए. उसको अच्छे तरीके से. ओके. अच्छा बॉयस, एक चीज़ ये है कि मैंने इंशाल्लाह अभी आपको कुछ चीज़ें सेंड करूँगा क्लास के बाद. नोट्स में कुछ मैंने डिफाइन किए हैं और कुछ है जो दी ने भी माशा से डिफाइन किए हैं, वो भी इंशाल्लाह हम आपके साथ शेयर करेंगे. एक तो आपने साथ साथ नोट्स इसके प्रिपेयर करने हैं, साथ साथ आप इसकी प्रैक्टिस भी इसको फोकस करें. तो इनिशियल जब आपको इसके लॉजिक समझ आना शुरू होगी ना भाई, व्हाई दिस क्लासिफिकेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो फिर आपको अगली जो भी स्टेप्स होंगे वो आपके लिए इजी टू अंडरस्टैंड हो जाएगा इंशाल्लाह. ओके, तो यहाँ तक किसी की कोई क्वेरी हो तो प्लीज डिस्कस कीजिए. एनीथिंग एल्स यू वांट टू डिस्कस प्लीज? सर एक क्वेश्चन है जी प्लीज. सर. जब हमने डिफाइन फिस्कल ईयर जब हमने डिफाइन कंपनी किया था, वहां पे भी मुझे याद आ रहा है कि हमने वहां पे भी एक सिलेक्ट किया था जन टू दिसंबर. तो जब डिफाइन कंपनी फाइनेंशियल में आई थिंक है, अभी आके हम फिर से एक दफा ये डिफाइन फिस्कल ईयर कर रहे हैं, तो ये हमें तो यहाँ पे आगे डायरेक्ट इसके साथ लिंक करना चाहिए ना, बजाय इसके 2 दफा करें हम. वो आई थिंक आप कंट्रोलिंग एरिया की बात करते हैं. आप वापस कंट्रोलिंग एरिया में. जी सर वापस से क्रेडिट कंट्रोल एरिया, उसमें जो इनका अच्छा पॉइंट था, वापस से प्लीज क्रेडिट कंट्रोल एरिया. अच्छा, यहाँ पे बड़ा अच्छा सवाल किया आपने मिस्टर जाहिद, माशाल्लाह, ब्रिलियंट, वेरी गुड, एक्सीलेंट. यस, ओपन कर दें. नहीं जाहिद, देखिए अब हम इसको असाइन करें. यहाँ पे आप लिखे, एक मिनट, यहाँ पे लिखे fx प्लीज, fs लिखो. ये आ गया ना? आप समझ आ गया लॉजिक? जी. यहाँ पे आपने फिस्कल ईयर को डिफाइन नहीं करना, बल्कि यहाँ पे आपने फिस्कल ईयर को मेंशन करना है. ठीक है सर. ओके, डिफाइन इज समथिंग एल्स व्हाइल मेंशनिंग इज समथिंग एल्स. ठीक है सर. मुझे याद आ रहा है हमने कहीं पे आके सिलेक्ट भी किया था. हमने नहीं, वो मैं बताता हूँ जाहिद, वो मैं इसको करने लगा था, लेकिन सर ने उसी वक्त एक्सप्लेन किया था कि अभी नहीं करो, लेटर ऑन जब हम अपना फिस्कल ईयर डिफाइन कर देंगे देन वी विल असाइन हियर. ठीक हो गया. ठीक, ओ मेरे माइंड में वही क्लिक कर गया कि ये हमने पहले भी कहीं पे किया था. सही है ना? वैसे माशाल्लाह ऑडिटर है, वैसे सही कमाल के माशाल्लाह से. आपको वैसे पाकिस्तान गवर्नमेंट में होना चाहिए, एजीपी में होना चाहिए. सर वहां से तो जान छुड़ा के इधर आए हैं. सर हमें कोई पाकिस्तान में रख भी नहीं ना रहा था. हाँ, ऐसी बात है, आप लोगों ने पाकिस्तान को दिमाग लगा के टैक्स डिपार्टमेंट में मिल जाती है, अच्छा करियर बन जाता है, लेकिन वहां पे फिर वो थोड़ा वो आ जाता है, हलाल हराम की आ जाती है. हाँ, ये तो है. तो इज देयर एनीथिंग वांट टू डिस्कस प्लीज? सर ये एक और क्वेश्चन है छोटा सा. जी प्लीज. एसएपी हमें पोस्ट डेटेड एंट्रीज करने की ऑप्शन देता है? पोस्ट डेटेड की एंट्री करने की ऑप्शन बिल्कुल देता है. तो दोनों सिचुएशन हो सकती हैं, जैसे प्री डेटेड हमने एक पीरियड डिफाइन कर लिया कि विद इन 3 मंथ्स या 4 मंथ्स हम आफ्टर ईयर एंड फिस्कल ईयर एंड हम उसकी एंट्री कर सकते हैं. तो ऐसे ही हम, ठीक हो गया सर, ठीक हो गया, बिल्कुल कर सकते हैं. तो उसको भी हमें डिफाइन करना पड़ेगा सर? बिल्कुल डिफाइन करना होगा. ये तो डिपेंड करता है कि आपने मतलब क्या 1 माह के बाद करना है, या अगर फॉर एग्जांपल, बहुत अच्छा सवाल यार आपका. मिसाल के तौर पे अभी मंथ कौन सा चल रहा है? अप्रैल है ना? तो बस कुछ ऐसी ट्रांजेक्शन होती है कि भाई मतलब कि आज उनको कर दे तो नेक्स्ट मंथ एग्जीक्यूट होंगी. तो आप क्या करते हो, आप डॉक्यूमेंट तो आज क्रिएट करते हो, लेकिन उसकी जो पोस्टिंग है ना वो आपने नेक्स्ट मंथ करनी है, वो भी पॉसिबिलिटी है. ठीक है. अगर आप ये चाहते भाई मैं 3 माह बाद करूं, तो फिर उसके लिए जो है बैक एंड के ऊपर आपको थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगी.
ठीक होगा क्योंकि आपको ये भी मालूम है कि देखिए एज ऑडिटर क्या होता है कि आप एक चीज़ की सुपरविजन कर रहे होते हैं, आप हर चीज़ की वेरिफिकेशन कर रहे होते हैं कि भाई ये चीज़ आपने क्यों की, ये चीज़ क्यों नहीं की, ये क्यों टाइम पे क्यों नहीं हुआ ना। तो उसमें होता है कि जब जो फ्रंट एंड की ट्रांजेक्शन होती है वो होती है यूजर लेवल की होती है। तो यूजर लेवल की जो भी जी ट्रांजेक्शन होती है वो हमेशा कंसल्टेंट लेवल के परमिशन के बाद ही परफॉर्म की जाती है। ठीक है सर। वेरी गुड। इसके अलावा कोई टेक्निकल पॉइंट प्लीज। सर मेरा एक क्वेश्चन है जी कि पीरियड हम एक बहुत अच्छा सवाल ये आया कि सर जरा रिपीट करना अपने क्वेश्चन प्लीज। सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ, पीरियड हमने डिफाइन कर दिया है, उसके बाद पीरियड क्लोज हो जाता है, तो ओपन करने के लिए या उसको दोबारा से क्लोज करने के लिए हमें एसएपी के जो एडमिन है उनको रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी या कंसल्टेंट और मैनेजर के पास उसके ओके राइट्स ओके होंगे? ओके ओके। तो बड़ा अच्छा सवाल है। सबसे पहले ये कि अगर आपने क्लोजिंग या पोस्टिंग पीरियड को एडजस्ट करने चेंज करने हैं ना, तो आप हमेशा कंसल्ट करते हैं एसएपी कंसल्टेंट को। यहाँ पे ना 4 चीज़ें इन्वॉल्व हैं। फर्स्ट वन इज फ्रंट एंड यूजर, जिसमें अकाउंटेंट आ सकता है, असिस्टेंट फाइनेंस मैनेजर आ सकते हैं। उसके पास कोई अथॉरिटी नहीं होती। ओके, उसका काम के पास एंट्री पोस्ट करना, डॉक्यूमेंट पोस्ट करना, नंबर 1। नंबर 2 आपका आता है फाइनेंस मैनेजर। अब यहाँ पे आमतौर पे आपने जॉब देखी होगी कि भाई जो फाइनेंस मैनेजर है उनके लिए एसएपी कंसल्टेंट लेवल की सर्टिफिकेशन या ट्रेनिंग मस्ट होती है। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें एससीपी ऑलरेडी इंप्लीमेंट हो चुका है, वहाँ का जो फाइनेंस मैनेजर है अगर उसके पास एससीपी कंसल्टेंट का एक्सपीरियंस नहीं या सर्टिफिकेशन नहीं, तो उसको भी अथॉरिटी नहीं होगी कि बैक एंड के ऊपर वो वर्किंग कर सके। पॉइंट नंबर 2। देन पॉइंट नंबर 3, एसएपी फाइनेंशियल कंसल्टेंट। फाइनेंशियल कंसल्टेंट के पास ये अथॉरिटी होती है कि जो बैक एंड के ऊपर आपने जो कॉन्फ़िगरेशन की, कॉन्फ़िगरेशन में भी उसको कुछ अथॉरिटी दी जाती है। फॉर एग्जांपल कि एक चीज़ वो होती है, एक चीज़ की कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ये होता है कि आपने एक चीज़ डिफाइन कर दी और वही चलती रहेगी। 5 साल 10 साल के बाद उसको चेंज करना हो या 2 साल के बाद चेंज करना हो, तो वो एक एडमिनिस्ट्रेटर के पास जाएगा। ऐसे कॉन्फ़िगरेशन जो आप ये समझते हैं कि हर महीने में उसको चेंज किया जाएगा, तो वो जो अथॉरिटी होती है वो कंसल्टेंट को दी जाती है। ओके। फोर्थ नंबर पे आता है एससीपी एडमिनिस्ट्रेटर। उसका काम ये होता है कि जो मास्टर कॉन्फ़िगरेशन का जो डाटा होता है जिसको आपने चेंज करना होता है, जैसे कि प्लांट आपने चेंज कर दिया, कंपनी कोड आपने चेंज कर दिया, या एबाप में आपने कुछ डिपार्टमेंट्स को आपने इंटरलिंक करने, तो उसको डेटा या उसकी फील्ड को आपने चेंज कर, तो वो एडमिनिस्ट्रेटर के जरिए उसको चेंज किया जाता है। दिस पॉइंट इज क्लियर। जी सर। इसलिए आप ये जॉब में जो भी जॉब्स आती है ना फाइनेंस मैनेजर के लिए ना, तो उसमें लास्ट में लिखा होता है कि एसएपी सर्टिफिकेशन, एसएपी कंसल्टेंट लेवल एक्सपीरियंस इज मैंडेटरी। क्योंकि वो लोग क्या कंपनी की क्या होते हैं, भाई हमने फाइनेंस मैनेजर को जो हायर करना है, हमने उसको इतनी महंगी उसको हमने इतनी हाई पेड सैलरी देनी है, तो हम चूंकि हम क्यों ना उसे कंसल्टेंट लेवल का भी काम ले लें। तो आज का इंडस्ट्रीज की ये जो है पॉलिसी चल रही है। वेरी गुड क्वेश्चन। इसके अलावा प्लीज। Okay, thank you so much. Allah Hafiz.